नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग दी जीएस मेंस enrichment program. ठीक है, एंड इन दिस वीडियो वी विल कवर all the important topics that are in the current affairs regarding the GS paper 1, and after that in the upcoming videos we will also cover the GS paper 2, 3 and 4 important topics, and also whatever topics were in the news regarding the prelims also we will cover them too. Okay, now without any delay, start with the topic of the GS paper 1 first. Now, as you know that in the GS paper 1 we deals with the topic like the history, geography and many more subjects. So the first topic is from the इंडियन कल्चर. नाउ एज यू नो कि बहुत सारे ऐसे एंटिक्विटीज़ हैं, ठीक है. सो जो कि क्या है कि बेसिकली जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो इंडिया से ले गए थे बहुत टाइम पहले. सो फॉर दैट व्हाट वी हैव, व्हाट लॉ वी हैव, सो फॉर दैट वी हैव द एंटिक्विटीज़ एंड द आर्ट ट्रेजरी एक्ट ऑफ 1972. ठीक. और इसके अलावा वी ऑल्सो हैव द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958. ठीक है, तो ये जो दो लॉ हैं 1958 के, ठीक है, ये वैसे आता है अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ठीक, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है. इसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्लानिंग सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी कुछ बना रहे हैं कि जिसकी वजह से जो डिप्लोमेटिकली जो बाहर गए हुए जो भी हमारे जो भी एंटिक्विटीज़ हैं, जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उनको हम इंडिया में वापस लेके आ पाएँ. ठीक. नाउ अब बात करते हैं कि where is the definition of the antiquity is given. Now the definition of the antiquity is given in the Antiquities and the Art Treasury Act of the 1972, and it is defined as the anything which is coin, sculpture, painting, epigraph, craftsman. So everything will be covered under this, and this should not be less than 100 year. Okay, now for manuscript, record and other documents, ये जैसे कोई scientific evidence है, historical, literary या aesthetic beauty को appreciate करने वाला, for that it should be not less than 75 year. So the criteria is different. If it is coin, sculpture or painting or any epigraph, so the criteria is 100 year. Otherwise it is 75 year for any sort of literary or aesthetic or the scientific sculpture. Now there's a convention also. What is the convention? The UNESCO convention of the 1970. Okay, and this defines the cultural property, because what are these things? These are our cultural property. Okay, because somehow these things are associated with the Indian culture as one of the, and so this defines the cultural property and importance of the archaeology, prehistory, history, literature and science. Because all these manuscript or literature, these are our cultural property, and this signifies somehow related to the prehistory, Indian prehistory, literature or science. Now, before the independence of Indian Act got implemented or India got free, we have the Antiquities Export Control Act of 1947. ठीक है, दिस इंश्योर्स दी नो एंटिक्विटी कुड बी एक्सपोर्टेड विदाउट ए लाइसेंस. सो ऐसा नहीं है कि इंडिया के बिफोर इंडिपेंडेंस कुछ लॉ नहीं था. वी हैव द लॉ ऑफ द एंटिक्विटीज़ एक्सपोर्ट एक्ट ऑफ 1947 दैट इंश्योर्स दी कि कोई भी एंटिक्विटी जो एंटिक्विटी है वो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट नहीं होगी, और अगर होगी सो इट नीड अ लाइसेंस फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस. And you should also know this thing, as I told you, the ASI, Archaeological Survey of India, the first general is Alexander Cunningham, और उसी के अंतर्गत ये लॉ है द एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स साइट एक्ट ऑफ 1958. एंड एक और एक्ट है एंटिक्विटी एक्ट, ठीक है, वो यही वाला है 1972. नेक्स्ट बात करते हैं सेलियंट प्रोविज़न ऑफ द दिस एक्ट ऑफ, जो से क्या क्या सेलियंट प्रोविज़न है ऑफ द एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एक्ट. ठीक, तो इसके बारे में अगर बात किया जाए, द एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजरी एक्ट ऑफ दिस, सॉरी इसका, ठीक है, क्या क्या सेलियंट फीचर हैं. ठीक,
पहले लिखा हुआ है कि अदर देन दी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नो पर्सन कैन एक्सपोर्ट एनी एंटिक्विटीज़ और आर्ट ट्रेजरी, यानी कि कोई भी पर्सन अपार्ट फ्रॉम दी जो भी ऑथराइज्ड एजेंसी है उसके अलावा वो क्या है वो उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकता. सो दिस इज़ अ लॉ देयर. ठीक. एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन 1976. सो बेसिकली आया था 1972 में. ठीक. एंटिक्विटी एक्ट. बट लेकिन ये इम्प्लीमेंट हुआ है, एंटिक्विटी एक्ट गॉट इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर ऑफ 1976. एंड एवरी पर्सन, ठीक है, in possession of any antiquity shall register such antiquity to obtain a certificate. So if you any person have any sort of antiquity or any sort of a monument or symbol जो कि प्री हिस्ट्री को रिलेट करता है, so that should be registered. ठीक है, so that he cannot he should not be in a position to sell it by himself. ठीक है. नेक्स्ट बात करें द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एंटिक्विटी इंडियन एंटिक्विटी द रजिस्टर्ड एंटिक्विटीज़ इन इंडिया. सो जो नेशनल मिशन ऑन द मॉन्यूमेंट एंड एंटिक्विटी 2007 है, हेल्थ रजिस्टर्ड 3.52 लाख ऑफ एंटिक्विटीज़ अमंग द 16.70 लाख हैज़ डॉक्यूमेंटेड. सो अभी तक जैसे मैंने बोला ना कि इसको रजिस्टर करना पड़ेगा. सपोज इफ एनी कोई पर्सनल है, यानी कि कोई एक इंडिविजुअल है और उसके पास कोई एंटिक्विटी है तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा. तो उसको जोड़ के और बाकी जितनी एंटिक्विटी हैं उनको सबको जोड़ के टोटल अगर बात किया जाए तो नेशनल मिशन ऑन दी मॉन्यूमेंट एंड एंटिक्विटी का जो 2007 का मिशन है, इसमें अभी तक 3.72 लाख जो एंटिक्विटी हैं, ठीक है, उनको रजिस्टर किया जा सका है. व्हाट इज़ द थ्रेड टू दी एंटिक्विटीज़? illicit import, export, transfer and the ownership of the cultural property. So basically because these antiquities जो हैं, ठीक है, they are of very significant value. These are of very significant value. So होता है क्या बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट पीपल क्या करते हैं, लोग उसको सेल भी कर देते हैं. ठीक है, चोरी चुप के उसको सेल कर दिया फॉर द पर्पज़ ऑफ मनी. तो उस वजह से क्या होता है कि वो इंडिया से बाहर क्या चली जाती हैं, इलीगली एक्सपोर्ट हो जाती हैं. इम्प्रूवमेंट ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री ऑफ ओरिजिन. ठीक. नाउ फिर बात किया जाए कि जो इलिसिट इंटरनेशनल ट्रैफिक ऑफ द कल्चरल आइटम है, इसने कहा था कि जो भी इंक्रीजिंग प्रोलिफ हो रहा है, यानी कि जो भी ऑलमोस्ट 50 ईयर्स आफ्टर द यूनेस्को कन्वेंशन, अभी भी क्या है जो नंबर ऑफ एक्सपोर्ट है, ठीक है ना, वो भी इलीगल एक्सपोर्ट वो क्या है बढ़ रहा है. दिस इज़ द रिपोर्ट ऑफ द इंटरपोल. नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर 3 कैटेगरी हैं. इसमें डिटेल में तो जाना वाला नहीं है, बट द थिंग इज़ कि यू शुड नो दिस थिंग दैट देयर आर 3 कैटेगरीज वी हैव डिवाइडेड the process of bringing back the antiquity. The first is the antiquity that taken out before the independence, and antiquity that taken out since independence until the implementation of the AATC, that is the Antiquity Act of the 1972. ठीक. and antiquities taken out since 1976. तो ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड फ्रॉम द इंडिपेंडेंस टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटिक्विटी एक्ट, एंड द थर्ड इज आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटिक्विटी एक्ट इन 1976 टू टिल नाउ. तो ये 3 कैटेगरी में इसको क्या किया, डिवाइड किया गया है, और उसके अंदर प्रॉपर प्रोसीजर है दैट हाउ विल गोइंग टू अवेल दैट पर्टिकुलर एंटिक्विटी. ठीक. नेक्स्ट बात किया जाए यहाँ पर व्हाट आर द लॉज incapable of stopping the illegal or illicit activity. So we have the registered antiquities in India are very small portion of the total number. So total जो number जो registered है means the data available to the government is very less in compared to the total antiquity. So that's why the government don't have any estimate regarding that how much is illegally or illicitly exported out of the India. ठीक है. So this is the thing, and there's also the thing is that there's no FIR if any antiquity got stolen. So no one registered an FIR regarding it because they think that it is just a statue or whatever they considered it. ठीक है. They considered it as a not of very significant value. So and the gap between the artifacts officially declared the missing. तो बेसिकली वही चीज़ है कि जो रजिस्ट्रेशन है उसका वो प्रॉपर नहीं पता हमें. ठीक है, तो उसका कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं है, एंड दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम. नेक्स्ट थिंग इज द व्हाट इज़ द वे हेड द रॉबस्ट डेटाबेस. वी नीड अ रॉबस्ट डेटाबेस फॉर द existing and the stolen antiquity or the artifacts. So there should be a robust data so that we can just have an estimate
कितना हमारे पास एंटिक्विटी पड़ा हुआ है, कितना एक्सपोर्ट हो गया, या फिर कितना वहाँ से मिसिंग है एटलीस्ट. एंड ASI, दैट इज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मस्ट प्रोवाइड विद द एडिशनल रिसोर्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द एंटिक्विटी. लुक, all these antiquity they come under the domain of the Archaeological Survey of India, because Archaeological Survey of India is that organization that basically strike a balance between the cultural history or cultural property of a particular nation. In this case it is India. And international cooperation, we also need international cooperation, ठीक है. एंड एज यू नो दैट यूके में जो है, जो यूके का जो म्यूज़ियम है, ठीक है, उस म्यूज़ियम में बहुत सारी एंटिक्विटीज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है. रानी के खजाने में यू कैन से द ट्रेजर ट्रॉव ऑफ प्रिंसेस. बट द थिंग इज़ कि वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं से लूट के लाई हुई हैं, और मैक्सिमम चीज़ जो हैं दे हैव जस्ट रॉब्ड फ्रॉम द इंडिया ओनली, ठीक है, दे स्टील फ्रॉम द इंडिया ओनली. सो दिस यू शुड नो. नेक्स्ट बात करते हैं द मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक है, ठीक है. तो उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास. द फर्स्ट इज़ द विमेंस एंड द नेशनल बिल्डिंग 1857 टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. सो यहाँ पर बात किया गया है कि कुछ जो फ्रीडम फाइटर्स थी, ठीक है, हु हेल्प्ड इन अचीविंग द इंडिपेंडेंस, और हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द नेशन बिल्डिंग और स्ट्रगल ऑफ इंडिया, उनके बारे में बात किया गया है. तो सो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ये था कि 133 द फाउंडेशन डे था ऑफ द नेशनल अचीवर्स डे, ठीक है. तो इसके क्वेश्चन पे यहाँ बात की गई थी. तो इसमें बात किया गया है कि कौन कौन सी जो विमेंस है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेड बाय द विमेंस इन द नेशन बिल्डिंग एंड द फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1857 टू 1950. नाउ द फर्स्ट वी टॉक अबाउट द रानी लक्ष्मीबाई, द झांसी ऑफ रानी, ठीक है. सो everyone knows that she played a very significant role in the revolt of the 1857, ठीक है. And her husband Gangadhar Rao, okay, got killed and she don't have any son. So because कोई उनका legal hire नहीं था, so because of that she adopted a hire, and the Britishers were not giving the legal status to that particular adopted son. So this was the cause of her revolt, and she fought very bravely. And there was a governor general, or there was a general known as the Hugh Rose. So Hugh Rose said that among all the men, she is the only male. Means she fought marvelously, miraculously. Now the second is the Begum Hazrat Mahal. She is from the Lucknow, and she was the wife of Wajid Ali Shah. Okay, she fought from the Lucknow, and she was also in the favor of putting her son, the Birjis Kader, okay, on the throne. So this was her reason, and there are many more reasons, and this is the main reason. And she also want the pension of of her husband, okay. Now the next one is the Sarojini Naidu. She also called the Nightingale of India, and she was also the first Indian women president of the INC. But remember, the first women president of the INC was, who was it? The first women president of the INC was Annie Besant, but the first Indian women president of the INC was Sarojini Naidu, and she participated in the national movement, and she was the key figure in the national cooperation movement, okay. And as I told you, she was called given the title of the Nightingale of India from the Mahatma Gandhi. So Mahatma Gandhi was given the title to the Sarojini Naidu. The next is the Kamala Devi Chattopadhyay. So she was a social reformer, and she promoted the handicraft and emerging power of the women. So basically क्या है, the Kamala Devi Chattopadhyay, she worked for the upliftment of the women. The next we're talking about the same lady, the Annie Besant. So Annie Besant, she was basically from the Ireland. So she was an Irish lady, and there in that country, basically she was initially the
operating the Theosophical Society, and later she joined the self rule, that is the home rule movement in India with the Bal Gangadhar Tilak, okay, and supported the Indian National Congress, okay, and she also founded the Banaras Hindu University. Now remember, the Bal Gangadhar Tilak was basically organizing the home rule movement from the Madras, okay, and she was from the second area, ठीक. So this you should know it. Now next is the Begum Rokia. So she was a writer, she was an educator, and she was a social activist too, okay, and she was the founder of the first school for the Muslim girl. So she worked for the welfare of the Muslim. So फर्स्ट मुस्लिम गर्ल्स के लिए उन्होंने रूल बनाया, स्कूल बनाया था, एंड शी वर्कड फॉर द विमेंस एजुकेशन. सो दिस यू शुड नो फ्रॉम हेयर. नाउ नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दी मैडम बीकाजी कामा, ठीक. सो मैडम जी बीकाजी कामा, शी वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द होम रूल मूवमेंट जस्ट लाइक द एनी पेसेंट, and she was instrumental in demanding the equal rights for all the Indians, okay, and this fact is very much important that she unfurled the Indian tricolor flag first time an Indian woman outside the India at the Stuttgart, Germany. So basically इन्होंने क्या किया था, इंडिया का जो फ्लैग था ट्राइकलर फ्लैग, उसको अनफोल्ड किया था कहाँ पर, स्टटगर्ट जर्मनी में 1907 में. तो इंडिया में नहीं किया था, जर्मनी में किया था, एंड शी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू फ्लैग द इंडियन फ्लैग आउटसाइड इंडिया, ओके, and she was also known as the mother of the Indian revolutionary. And the last one is the Aruna Asaf Ali. Aruna Asaf Ali, she was a political leader who participated in the Quit India movement in the year of 1942, and she hoisted the Indian flag at the Gwalika Tank Maidan in the Bombay during the Quit India movement of 1942, and she was also known as the Grand Old Lady of the Indian Independence. Okay, so उन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी कहते थे. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट women that were participated or gave her contribution in the freedom of India. So that doesn't mean कि और नहीं है, there are many more women's, but we have just selected some of them. Now, so basically अगर बात किया गया what are the limitations थी, the social restrictions, that because the women were confined to the traditional roles of caretaking the home and taking care of the children, or many other stereotypes role, lack of the education, okay, so there were less number of the women participated in the movement just because they don't have the proper education. So there was a limited participation because they don't have the ability to the communication, they don't have the ability to express themselves or to speak out for their right. So this was a thing too. The next is the limited access or to the resource and the gender discrimination. So maybe if there's a woman and she's leading a movement, so the many times happen that people judge her on the basis of the her gender identity, and there's also because the patriarchal societal mindset was there. So if anyone want to voice their concern, so basically the opinions were often not taken seriously. So this was the thing, ठीक है. नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट वी शुड नो दैट conclusion क्या है, this despite these limitations there are many women played significant role in the independence of the movement and paving the way for the generation of the women to be follow, ठीक है. So this you should know. And as I know that there's one more name coming on my mind is the Savitribai Phule, the wife of the Jyotiba Phule, ठीक है. So she also gave a very big humongous contribution in the development of the education of the women. She also opened a school, ठीक है. So this you should know, the Savitribai Phule, the name of the Savitribai Phule. Now अब बात करते हैं the National Archive of India. So what is the National Archive? Archive is anything where we store something. So it was established in 1891 and it is the attached office of the Ministry of Culture, ठीक है. So this you should know, the National Archive of India, it is an attached office of the Ministry of Culture and it is present at the repository and collection of the public record, ठीक है. And this
जो भी इसका जो बिल है असेंड है, इसको असेंड किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि दैट देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ नेशनल आर्चाइव वेयर, जो कि विच इज़ अटैच्ड ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वेयर वी कीप्स द पब्लिक रिकॉर्ड. एंड इफ देयर इज़ एनीथिंग और एनी एक्टिविटी कोई भी होगी, बिल पास होगा, सो दैट विल हैपन विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली. ठीक. नाउ अब यहाँ पर बात किया जाए कि जैसे कि यहाँ पर एक मेंस का क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द विमेंस फ्रीडम फाइटर ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. तो इस पर आप लिख सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस ऑफ द 1884 रिवॉल्व अराउंड. ओके, सो क्वेश्चन क्या है कि जो रखमाबाई का केस था इन द दैट वाज हैपेंड इन द ईयर ऑफ 1884, इट रिवॉल्व्स अराउंड व्हाट थिंग. ठीक है. सो द ऑप्शन वाज द विमेंस राइट टू गेन द एजुकेशन, द एज ऑफ द कंसेंट, रेस्टिट्यूटर्स ऑफ द कंजुगल राइट्स. नाउ if you pay attention here that so this year is itself telling a lot. Its year is the 1884. Now in the year of 1884 there's very less chances that anyone or any case, this is a case, so any case will talk about the right of the women, even after 1950, after the independence. At that time we are not very much aware of the right of the women's totally. ठीक है. So gradually we are heading towards the rights of the women's, but in the year of 1884 maybe it is very hard to believe that anyone is or any case is talking about the women's right to gain education. So basically देखा जाए अगर कि this is a very realistic or very hard to achieve topic at that time in the year of the 1884. So that's why it is hard to be true. The next is age of consent. Yeah, this could be a thing because the women are getting married below the age of 13, 12, right? So child marriage was a common thing at that era. Okay, so the age of consent could be a factor, so we are considering this as a right. Then the next is the restitution of the conjugal rights. Conjugal rights means the rights to marry. ठीक है. So rights to marry, so the right to marry, it is related to the conjugal rights. Now if you relate this thing, the right to marry is related to the conjugal rights and the right to marry is also related to the age of consent, so somehow these two options are related, so that's why the B will be the correct option. ठीक है. So 2 or 3 are the correct option, A is not the correct option. Now moving forward, now अब बात करते हैं इंडिया एंड द कोरियन वॉर. ठीक. नाउ so this topic is related to the world history. As you know, the paper GS paper first, history is the topic. Now India and the Korean war. तो आपको पता है कि इंडिया और कोरियन वॉर जो थी, बेसिकली अगर बात किया जाए, ये दिस कंप्लीट इज दिस इज द कोरियन पेनिनसुला. दिस इज द कोरियन पेनिनसुला. ओके. नाउ अब बात किया जाए कि ये ऊपर जो है वो नॉर्थ कोरिया है, इसकी कैपिटल क्या है, प्योंगयांग, और जो नीचे साउथ कोरिया, इसकी कैपिटल क्या है, सियोल. सो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर व्हाट हैपेंड वाज लाइक कि जो नॉर्थ कोरिया गॉट द सपोर्ट फ्रॉम द USSR और सोवियत यूनियन, एंड द साउथ कोरिया गॉट द सपोर्ट फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज. ओके. एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो गया कि देयर वाज अ कोल्ड वॉर इसके बीच में चल रही थी. नाउ एंड दिस यू शुड ऑल्सो नो दिस चैनल 38 डिग्री पैरेलल चैनल. ठीक है. तो उसके बारे में बात करेंगे. 38 डिग्री पैरेलल चैनल के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको ये पता होना चाहिए, इस अगर पिक को देखेंगे तो कुछ चैनल्स के बारे में पता होना चाहिए. जैसे अगर यहाँ की बात किया जाए, सो ये है हमारा अंडमान और निकोबार का आइलैंड, और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए देयर इज अ 10 डिग्री चैनल. सो द 10 डिग्री चैनल इज बिटवीन द साउथ अंडमान, ठीक, सॉरी, बिटवीन द लिटिल अंडमान एंड निकोबार. सो लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में क्या है, 10 डिग्री चैनल है, और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में क्या है, दक्कन पास है. इन द सेम वे लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय सेपरेटेड बाय द 9 डिग्री चैनल, एंड मिनिकॉय एंड मालदीव्स आर सेपरेटेड बाय द 8 डिग्री चैनल. ठीक. एंड देयर इज अ नारकोंडम आइलैंड, you also know that, and there's a Barren Island. Barren is an dormant volcano and Narcondam is the extinct volcano. ठीक है. सो दिस यू शुड नो. अब बात करें थोड़ी सी कोरियन वॉर के बारे में. तो ये बेसिकली क्या कोरियन वॉर है, कोरियन वॉर बेसिकली इट इज़ बिटवीन दी नॉर्थ कोरिया, ओके, नॉर्थ कोरिया बेसिकली इट इज़ सपोर्टेड बाय द चाइना एंड द सोवियत यूनियन एज आई टोल्ड यू, एंड द साउथ कोरिया supported by the US and the allied country, and this war happened in the year of the 1950 and this got ended in the year of the 1953. ठीक. and this war was the basically outcome of the
Cold War that was going on between the Russia and the Soviet Union. And you know the Soviet Union, it is a communist country, and the Russia was a capitalist country. Okay, so this was the Korean War, and basically the war is happening for the claim of the entire Korean peninsula, कि कोरिया पेनिनसुला को कौन claim करेगा. So this was it. And apart from that, इंडिया एट द यूएन, इंडिया ने यूएन में क्या स्टैंड लिया. सो बेसिकली एज यू नो दैट इंडिया वाज अमंग्स द 6th नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी, जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है, तो उसमें से है. वैसे इट इज़ इन यूएनएससी देयर आर 5 परमानेंट मेंबर एंड 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जो बेसिकली आफ्टर टाइम इंटरवल क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं. ठीक है. सो बेसिकली इंडिया का यही स्टैंड था कि यूएनएससी में भी कि जो भी पर्सन्स हैं, ठीक है, वो क्या करें, विड्रॉ कर लें अपनी ट्रूप्स को अपनी टेरिटरी में. मीन्स द विड्रॉल ऑफ द नॉर्दर्न ट्रूप्स फ्रॉम द साउदर्न टेरिटरी एंड सदर्न ट्रूप्स फ्रॉम द नदर्न टेरिटरी. ओके, एंड सो दिस वॉज इट. ठीक. Next, moving forward, there was one more term of the colonial past is still relevant. So this topic is about the colonial past, means just like that in a way that there are many developed nation and they have their territories, overseas territories in the form of the island. And also कई जगह पे अगर बात किया जाए कि as like the UN peacekeeping forces, okay, UN peacekeeping forces. Now, UN peacekeeping forces are deployed in a very large amount. या कहीं पर भी if there is any where instability happen, so UN send its peacekeeping forces, जिसमें इंडिया का भी शेयर है. इंडिया इज मे बी द 3rd लार्जेस्ट UN peacekeeping सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है. अब क्या होता है कि यही बात किया गया कि ऐसे कोई पर्टिकुलर कंट्री है उसकी एंड द कंट्री हैज़ इट्स ओन सॉवरेंटी, बट बिकॉज अगर थोड़ा सा भी अनडिस्टर्बेंस होता है, इफ देयर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैपन, तो ये जो पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं या फिर कोई वायलेंस होता है तो यूएन खुद अपनी मिलिट्री भेज देता है. जस्ट लाइक इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द अफगानिस्तान, सो इन अफगानिस्तान देवर the military forces of the US were deployed for a very long time. And even recently you have seen that from the Mali, ठीक है, which is a country in Africa, the military of the France just moved away from there. So basically क्या है कि ये जो forces हैं काफ़ी टाइम तक उस जगह पे रहती हैं एंड टू इन द नेम ऑफ कि ये वहाँ पे एक स्टेबिलिटी कॉज करेंगी, बट ऐसा कुछ होता नहीं है. सो दिस होल आर्टिकल इज़ ऑल अबाउट क्या इज़ द कॉलोनियल पास इज स्टिल रिलेवेंट, क्या वो भी बचा हुआ है. एज यू ऑल्सो नोड अबाउट द वैगनर ग्रुप. ओके, सो दिस वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली. वैगनर ग्रुप ऑफ द रशिया के दीज आर दी ये जो वैगनर ग्रुप है ये क्या है, दीज आर दी पेड सोल्जर्स. ओके, वैगनर ग्रुप्स क्या कहते हैं, पेड सोल्जर्स. सो दिस होल आर्टिकल इज़ अबाउट दैट ओनली कि एक डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, दूसरी कंट्री में जाकर क्या करते हैं वहाँ पर बेसिकली अगर वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जैसे लिखा हुआ क्राइसिस ऑफ द गवर्नमेंट, इफ देयर इज अ क्राइसिस हैपन इन द गवर्नमेंट एज लाइक दीज कंट्रीज सूडान, लीबिया, सोमालिया, सो देयर वाज अ इंस्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट हैपन. सो ये क्या करते हैं वहाँ पर अपनी आर्मी भेज देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं. ठीक है. सो वीक स्टेटस और द वल्नरेबल टू कोलैप्स इटसेल्फ कॉजिंग एन कॉन्फ्लिक्ट और इवन अनइवन डेवलपमेंट. ठीक है. तो बेसिकली व्हाट हैज़ मेड द सिचुएशन वर्स, द कैपिटलिज्म. वी कैन ब्लेम द कैपिटलिज्म मे बी. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल थिंग, what is the way forward, what we could do to just remove this thing? We could protect the fundamental human right, and we could develop a democratic governance, okay, but in an international order and the principle upon the notion of the sovereignty and equality of the state. Now, doesn't matter anyone is sending troop or not, but the thing is ki in this whole activity, the sovereignty and the equality or integrity or whatever you called the individual identity of the particular nation got hampered.
ठीक है। सो वो पूरी ख़राब हो जाती है। तो दिस इज़ द थिंग। एक यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, एग्जामिन दी critically the various facets of the economic policy of the British in India from the mid 18th century to the till independence. This was the question in the 2014. Next, again we talk about the roles of the women's in and related issues. Now, there was a different phases of the Indian women's movement अगर बात किया जाए उसमें, ठीक है। and this whole movement of the Indian women's is known for its vibrancy because they have participated at a very large mass scale. Now, if you talk about the timeline or any sort of incidents where the women have participated at a very large scale, so these are some of the national political movement. It's like the acceptance of the women's leadership in the politics, okay, and setting of the grassroots mobilization and increasing the participation in the electoral politics. For example, it's like All India Women's Conference that happened in 1927, Salt Satyagraha happened 1930, Quit India Movement 1942. Now, in all these movements, whether it is All India Movement, Salt Movement, Quit India Movement, in all these movements, women had participated very vehemently, ठीक है ना, very very vibrantly, ठीक है। नेक्स्ट बात करें द राइट्स बेस्ड ऑन द सिविल सोसाइटी मूवमेंट. So, what is the rights based on the civil society movement? The grassroots organizing of the legal and the policy reforms against the patriarchal institute. Now, the patriarchal institute is patriarchal institute मतलब कि it's like कि it is said कि जो भी institutions हैं, ठीक है, if there is a political if there is a पॉलिटिकल स्टेडियम, तो उस पॉलिटिकल स्टेडियम में या उस पॉलिटिकल पूरे मंच में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या क्या कि ऐसा बोला जाता है कि नहीं ठीक है, जो मेल है, ठीक है, ही कुड बी बिकम अ गुड पॉलिटिशियन और एनीथिंग एल्स, और ही इज़ गुड एट ओरेटरी स्किल्स, ठीक है, बट ये हमेशा नहीं होता. सो द थिंग इज़ कि वी कुड फ्रेम द न्यू पॉलिसी, न्यूज़ लॉज, ठीक है, जो कि क्या हो, दैट विल बी अगेंस्ट द पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूट, सो दैट वी कुड established some right based social society movement. And after that, अगर कुछ और एग्जांपल्स की बात की जाए, चिपको मूवमेंट ऑफ 1970, ठीक है, इट वाज आल्सो अ इको फेमिनिस्ट मूवमेंट वेयर द women's were leading the movement to just not allowing people, ठीक है, the outsider to cut the tree. And there was also a term known as the self-employed विमेंस एसोसिएशन, दैट इज़ द सेवा. सेवा का मतलब क्या होता है कि कई सारे ऐसे एसोसिएशन हैं जो बेसिकली या ऐसे मूवमेंट हैं दैट वर लेड बाय द विमेंस ओनली. इट्स लाइक इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द निर्भया केस, ठीक, और यू टॉक अबाउट द शाहीन बाग में व्हेन देयर वाज अ प्रोटेस्ट हैपनिंग, ठीक है, रिगार्डिंग दी NTCA, NRC, NPR. So that Shahin Bagh protest was very silently led by the women's only. And then the Sabrimala temple protest of Kerala, ठीक है, where initially the women were not allowed to enter in the temple. So the thing is, after that the women came collectively and they protested unanimously for the rights of their rights to enter the movement, to enter the temple. And there are also some of the state-led movements for the political or the economic empowerment. For example, it's like the 73rd amendment happened regarding the panchayat, and there they have reserved the 1/3 seat of the panchayat for the women's. Next is the 17th Lok Sabha. In the 17th Lok Sabha include the 78 women's MP, ठीक है, this you should also know. And the self help group में भी मेन जो फंक्शनिंग है, ठीक है, तो वो ऐसी है कि वहाँ पर वुमेंस के भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं. तो टुडे देयर आर ऑलमोस्ट 1.2 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन इंडिया, मोस्ट ऑफ विच आर लेड बाय द विमेंस, ठीक है. और यू कैन से दी आशा वर्कर्स, ठीक है. सो कई सारी ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पर जो है विमेंस ने दे हैव पार्टिसिपेटेड वेरी गुड, ठीक है. नेक्स्ट बात किया जाए द इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट. तो इन बेसिकली मूवमेंट्स का इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट यह है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन वुमेन्स फ्रॉम द अबला टू द
Sabla. Abla means the women is weak, so she need to be sabla now. And the feminist advocacy. Now, what is the feminist advocacy? The sex selective abortion and the discrimination in the inheritance pattern leading to the legal reform. Okay, so till now or till the last decade, the women were not very much concerned about the inheritance of the property of the father. ठीक है, initially it was thought that the property of the father is just the patent right of the male child, but it is not like that. Slowly, gradually, as the time has reached now, so it is even the Supreme Court said that the right of the inheritance is equally distributed between the son and the daughter. And we have also seen the reduction in the sex selective abortion or the discrimination against the girl child. And work hard to reform the implementation law against the sexual harassment in the workplace. Okay, as you know that Vishakha guidelines, take. So these guidelines were given by the Supreme Court against the sexual harassment in the workplace or the any public place. ठीक. नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि इनिशिएटिव फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट, व्हाट इनिशिएटिव्स वी हैव टेकन, द फर्स्ट टॉपिक इज़ दी महिला सामख्य, दैट इज़ दी ओल्डर प्रोग्राम रिप्लेसिंग दी सेल्फ हेल्प ग्रुप. इसमें बात कर रहे हैं मोबिलाइजिंग द वुमेन्स एंड सेंसिटाइजिंग देम अबाउट देयर राइट. ओके, एंड इनहेंसिंग basically their the vocational skill and entrepreneurships. So if basically the women are aware about their right, so they can just ask for the what जो भी उनके लिए है तो उसके लिए they can ask for it. ठीक है, so this you should know. And the more important is the National Rural Livelihood Mission, NRLM. NRLM के अंतर्गत there are many programs were started regarding the women's and regarding everyone actually जो भी रूरल में है, ठीक है, whether it is male or female. So National Rural Livelihood Mission, ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए. तो बेसिकली इसने क्या किया, इसने एड्रेस किया जो भी करेंट जनरेशन थी ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो मूवमेंट थी ऑफ NRLM. द नेक्स्ट इज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप रिलायंस ऑन द हाई इंटरेस्ट लोन्स फॉर द मनी लेंडर डिक्लाइंड. सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से क्या हुआ कि बिकॉज initially the people were deployed or people, if they want to take loan in the rural area, so they take the loan from the money lender. But the problem with the money lender is कि the rate of the loan is very high. Okay, so because of the presence of the self help group क्या हुआ कि ये जो फ्रीक्वेंसी थी कि मनी लेंडर से लोन ले लिया जाए, तो ये भी क्या हुई है, थोड़ी सी ये कम हुई है. ठीक है, एंड फॉर दैट वी हैव जस्ट लाइक जनधन अकाउंट. तो जो भी जनधन अकाउंट हैं, तो जनधन अकाउंट की होने की वजह से भी क्या हुआ, लोगों का खाता खुल गया और उसके बाद ईज़िली उन्हें लोन मिलने लगा. या बहुत सारे और भी DBT है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं. फिर बात किया जाए SDG 5. SDG 5 टॉक्स अबाउट द जेंडर इक्वालिटी एंड द SDG 10 टॉक अबाउट द रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी. SDG 16 talk about the peace, justice and a strong institution. SDG 17 talks about the participation of the goals. ठीक, नेक्स्ट बात किया जाए कि सम बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन इन इंडिया. ठीक है, जैसे झारखंड ने एक लॉन्च किया हुआ था रानी मिस्त्री. रानी मिस्त्री का मतलब क्या कि वही मैंशन, ठीक है, विमेन मैंशन. जैसे हमारे यहाँ राज मिस्त्री होता है तो रानी मिस्त्री, ठीक है, जो घर बनाते हैं वो दैट वन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मनरेगा की बात करते हैं जिसमें अंडर द सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर द NRLM क्या हुआ, यूज़ द फंड एज द मनरेगा टू बिल्ड द इनकम अर्निंग एसेट्स ऑफ द वुमेन सच एज द कैटल शेड एंड पोल्ट्री शेड. सो बेसिकली जो अंडर द मनरेगा में जो फंड आता है, ठीक है, तो NRLM जो है बेसिकली विद द हेल्प ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप दे आर एबल इन अ पोजीशन टू यूज़ दैट मनी. ठीक है, तो वुमेन्स के लिए एसेट्स बना सकें, काउच शेड बना सकें, पोल्ट्री शेड बना सकें, तो इस तरह की चीज़ें हैं. ठीक, व्हाट आर द चैलेंजेस स्टिल प्रिवेलिंग इज़ दैट द सेल्फ हेल्प मूवमेंट का जो पोटेंशियल है फॉर एनहांसिंग द वुमेन्स इनकम हैज़ बीज अंडर यूटिलाइज्ड. ठीक है, तो बेसिकली जो पोटेंशियल है,
ठीक है, वुमेंस की इनकम का फ्रॉम द सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो अभी तक पूरा हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए हैं. सो दिस इज़ अ थिंग. एंड अपार्ट फ्रॉम द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर लिमिटेड टू द माइक्रो क्रेडिट. सो दे आर नॉट ऑपरेटिंग इन अ वेरी लार्ज स्केल. दे आर even though up to the microcredit, and there are limited evidence increasing the income due to the entrepreneurship of the women's empowerment within the household. Now uh, even though the women are employed or they are doing every sort of entrepreneurship, या मतलब कि कोई भी ऐसा उनको छोटा मोटा काम मिल रहा है तो वो काम कर रहे हैं, बट देयर इज दैट वर्क इज़ नॉट लीडिंग और जनरेटिंग very good amount of income. So this is the thing. Even like the main problem is the skilling. So the women's are not even very much skilled to operate a business or to do any entrepreneurship. ठीक है, so first we need to make them loaded with the skill. ठीक है, so this is the thing. Now next is this, sometimes the self-help groups have been used as the potential weapon by the ruling government, as you know. ठीक है ना, जैसे सबरीमाला प्रोटेस्ट में भी जब प्रोटेस्ट हुआ रहा था इन द केरला, सो द सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स, ठीक है, सो दे यूज्ड बाय द रूलिंग गवर्नमेंट फॉर दी देयर ओन पॉलिटिकल वेंडेटा और पॉलिटिकल एडवांटेज. ठीक है, सो दिस इज इट. नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड इज दी दैट डेवलपिंग सिनर्जी between the mobilization of the women's and support with the other complementary program that provides the enhanced livelihood अपॉर्चुनिटी. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वुमेंस को मोबिलाइज करना पड़ेगा और सपोर्ट करना पड़ेगा, और भी अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री प्रोग्राम है ताकि उनकी जो लिवलीहुड है, उनकी जो अर्निंग है, दैट कुड इंक्रीज. ठीक, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दिस मीन्स क्वेश्चन ऑल्सो दैट वुमेंस movement in India has not addressed the issue of the women's lower social strata. Substantiate your view. ठीक है, यानी कि जो women's हैं उनका अपलिफ्टमेंट तो हुआ है. So even we have achieved the gender, we have achieved the sex ratio. ठीक है, वो भी बढ़ गया है. The thing is कि the women's of the lower strata that has not achieved the goal. तो उन्होंने मतलब हम लोग उसको बराबर ही नहीं कर पाए हैं, द मेन स्ट्रीम वीमेन एंड द women's of the lower strata. So this is the question. The next is the India not on the target in the many women related goals. तो इंडिया जो है वो बहुत सारे जो women's related goals हैं उनके अभी टारगेट में नहीं है, तो ये उसके रिगार्डिंग है. ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ इतना पता होना चाहिए आपको. पहले तो मैंने बताया जैसे आपको पता होना चाहिए ये 5 वाला. ठीक है, this 5th number and this 10th number. 5th number talk about the SDG 5 talk about the gender equality, and SDG 10 talk about the reduced inequality. Okay, next बात किया जाए कि बेसिकली ये 5 इंडिकेटर हैं और जो हाईएस्ट नंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्होंने मीट किए हैं. कौन कौन से हैं जिसको बेसिकली मीट किया गया है, जिन टारगेट्स को मीट किया गया है. तो कौन कौन से टारगेट्स इनको मीट किया गया है? द फर्स्ट इज़ दी एडोलेंस प्रेगनेंसी. ठीक है, इस टारगेट को भी हमने क्या किया है, मीट किया हुआ है. नेक्स्ट इज दी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस ये प्रोवाइड की हमने, बैंक अकाउंट, सैनिटेशन, वैक्सीनेशन, इंटरनेट यूज़ और स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट. ठीक, नहीं, व्हाट आर द ऑफसेट टारगेट्स दैट वी हैव नॉट अचीव्ड येट is the access to the basic services we have not achieved yet. Next is the wasting and the overweighting of the children, anemia, child marriage, domestic violence, tobacco use and modern contraceptive. ठीक, now modern contraceptive में you should know there are 2 things. एक है छाया and the second is the अंतरा. ठीक है, तो छाया और अंतरा ये क्या है, ये मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये पता होना चाहिए आपको. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट what is the difference between the wasting and stunting. wasting का मतलब क्या होता है, देखिए wasting का मतलब क्या होता है कि वे हाइट टू वेट रेशियो, यानी कि आपकी हाइट कितनी है और उस हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना है. सो दैट इज दिस इज वेस्टिंग. नाउ द नेक्स्ट इज दी स्टंटिंग. स्टंटिंग इज द एज टू एज रेशियो, कि आपका वेट कितना है कंपेयर टू आपकी एज. ठीक, तो स्टंटिंग में क्या आएगा, स्टंटिंग में आपकी एज आएगी. ठीक, और वेस्टिंग में क्या आएगा, वेस्टिंग में आपकी हाइट आएगी. ठीक, तो ये याद रखिएगा. याद कैसे कर सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, एस जैसे कोई स्टंट दिखा रहा है तो बोलते हैं भी तुम छोटे हो, स्टंट मत दिखाओ, यानी कि छोटे हो किस बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ द एज. सो यू कैन जस्ट हैव अ रिमेम्बरेंस ऑन दैट बेसिस. ठीक है,
और कई सारी जो स्टेट्स हैं जैसे लाइक द MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, सो दे आर वर्स्ट परफॉर्मर, ठीक है ना, इन दीज क्राइटेरिया। नेक्स्ट बात करते हैं रिगार्डिंग दी विमेंस डे, ठीक है। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को मनाया गया था, ठीक है। एंड द थीम वाज द इनोवेशन एंड द टेक्नोलॉजी फॉर द जेंडर इक्वलिटी। सो जेंडर इक्वलिटी के बारे में क्या है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। और अभी बताया मैंने आपको जेंडर इक्वलिटी ये सेम थीम है कहाँ पर, SDG 5 में। बट SDG 10 में क्या है, SDG 10 में है रिड्यूस इनइक्वालिटी, ओके। सो हाउएवर द वुमेन्स लैक ऑफ द एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी एंड द डिजिटल टूल्स तो आर लेस अपार्ट लेस टू बी द पार्ट ऑफ द वाइडर डोमेन्स ऑफ द स्टेम, ठीक है। क्योंकि जो वुमेन्स हैं सो बेसिकली वो क्या है, उनके पास जो टेक्नोलॉजी की जो एक्सेस है वो क्या है, लेस है। सो दैट्स वाई दे आर देयर इज़ अ गैप बिटवीन द एजुकेशनल एक्सेस ऑफ द गर्ल्स इन दी स्टेम। स्टेम क्या होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इन फील्ड में जो वुमेन्स हैं वो कैसा काम कर रही हैं इसके बारे में बताया गया है। ग्लोबली अगर बात किया जाए तो ग्लोबली 18% जो गर्ल्स हैं वो हायर एजुकेशन में स्टेम को परस्यू करती हैं कंपेयर टू 35% ऑफ द बॉयज़। 35% ऑफ द बॉयज़ परस्यू the STEM, that is the either science, technology, engineering, mathematics in the higher studies, and 18% of the girls respectively। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता होना चाहिए, दैट इज़ दी ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन। ये एक सर्वे है जो हमेशा होता है, ठीक है ना, ASHE ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ये सर्वे होता है। तो ये 2020 और 21 का सर्वे था, इसमें बताया गया कि नियर अबाउट टोटल अगर बात किया जाए 71% जो स्टूडेंट इनरोल्ड हैं हायर एजुकेशन में वो मेल्स हैं और 29% जो हैं वो फीमेल्स हैं, ठीक है। सो हायर एजुकेशन में 71% मेल इनरोल्ड हैं और 29% फीमेल इनरोल्ड हैं। पर अगर हायर एजुकेशन में स्टेम में बात किया जाए, सो देयर वाज अ 44% गर्ल्स एंड 56% ऑफ मेन, ठीक। और अगर सिर्फ बात किया जाए कि ऑल द स्टूडेंट इनरोल्ड इन साइंस, सिर्फ साइंस की बात किया जाए तो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इट्स नियर अबाउट 53% कंपेयर टू द मेन। बट हाँ, दिस यू शुड नो दैट फीमेल इनरोलमेंट रेशियो इन द हायर एजुकेशन इज़ इंक्रीज्ड। तो इनरोलमेंट रेशियो था जो फीमेल का हायर एजुकेशन में वो क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है। पहले वुमेन जो थी यानी कि जो ASHE का जो सर्वे पहला वाला आया था, इससे पहले वाला, उसमें वुमेन्स का इनरोलमेंट था हायर एजुकेशन में, इट वाज 45, बट नाउ इट हैज़ इंक्रीज्ड टू 4% एंड बिकम 49%। सो दिस इज़ इट, ठीक। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, यहाँ से बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी चीज़ें बताई, फीमेल एजुकेशन का जो हायर एजुकेशन में जो रेशियो है वो इंक्रीज़ हुआ है। टोटल बात किया जाए तो फीमेल कितनी है 29% और मेल कितने हैं 71%। सिर्फ साइंस में बात किया जाए तो फीमेल कितनी है 53, ठीक। और अगर स्टेम में बात किया जाए हायर एजुकेशन में तब फीमेल्स हैं या गर्ल्स हैं 44 और मैन हैं 56। तो इतनी चीज़ें दिस यू शुड नो, ठीक। नाउ अगेन व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द गैप? Now reason for the gap is the inadequate resources. So the resources are not adequate, then the mentorship and the scholarship. Even though you know that the scholarship is mostly it is offered by the government, but sometimes it is not offered, or the parents or the students or the girl child is not fully assured of that she is going to have the scholarship. So this could be a lacuna in the gap of the education. The next is the societal attitude, as you know very well about the women's, and the next is the gender bias in the curricula. Okay, what is this? This is something very interesting that if you talk about the math science, so the textbook of the math science contain 50% of all the illustration is totally dominated by the boys. यानी कि जो भी इलिस्ट्रेशंस होंगे इन द मैथ एंड साइंस दे विल बी इलिस्ट्रेटेड, इट विल बी इलिस्ट्रेटेड, ओके, विद द ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द बॉय, एंड ओनली 6% ऑफ देम शोज द इलिस्ट्रेशंस टुवर्ड्स द गर्ल्स। सो दिस इज़ अ बिग मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। सो जेंडर बाइज्ड करिकुला। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट it is the steps taken by the government, ठीक है, to bridge the gap. So what steps government has taken? The first is the women's portal for the research grant and the funds under the CSIR Aspire. So Aspire fund बनाया गया है under the
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, जिसमें विमेंस पोर्टल बनाया गया है फॉर द रिसर्च एंड द ग्रांट ऑफ द फंड. द नेक्स्ट इज द 68% ऑफ द 2 crore PM आवास ग्रामीण बेनिफिशरीज आर द विमेंस. Over 23 crores of the Mudra loans have granted to the women's beneficiary. You know that all this team mostly because we are promoting the women empowerment, so mostly if there's a any Awas Yojana or any new good schemes, so it is said that the government initiate on the name of the women. ठीक है, जो नया घर भी होगा वो अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, so that house will be on the name of the women. And there's also legal thing that if you purchase a new home or if you do any sort of registry, so if you do in the name of women, you got some sort of compensation or subsidy. थोड़ा कम पैसा पड़ता है orally अगर बोले तो. so this is it. ठीक है, and as I told you, the sex ratio it has also improved to 1020 per 1000 men. So this is a good. And the permanent commission for the women in the armed force, पहले ये नहीं था, इसको क्रिएट किया गया है. इसमें 10,000 women's officers currently serving and majority of them were in the medical service. ठीक है, and this name you should know that शालिजा धमी. ठीक है ना, शैलजा धमी. तो जो शैलजा धमी है, ठीक है ना, शी इज़ द ग्रुप कैप्टन ऑफ एंड शी इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए. और इन्होंने क्या किया था, ये बेसिकली जो वेस्टर्न सेक्टर ऑफ पाकिस्तान का वहाँ पर कमांड किया हुआ था एज ए मिसाइल स्क्वाड्रन. ठीक. एंड देयर वाज आल्सो क्वेश्चन इन द UPSC CSC. इट इज़ डिस्कस द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन्स इन द हायर जुडिशरी इंश्योर्स द डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस. मूविंग फॉरवर्ड इज़ द क्लीन टेक. The next is the clean tech as the next big thing in the rural India. ठीक, इसके बारे में बात की जाए, इसमें ये बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, हमें बेसिकली क्लीनर एनर्जी की तरफ जाना है. एंड टू प्रमोट द क्लीनर एनर्जी व्हाट वी कुड डू, वी कुड टेक द पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन्स फ्रॉम द रूरल इंडिया. और हम उनसे कह सकते हैं कि वो क्या करें, अडॉप्ट करें क्लीन एनर्जी बेस्ड लाइवलीहुड टेक्नोलॉजी. ओके, just like to catalyze the business and transform women's livelihood at the grassroots level. जैसे हम क्या कर पाएंगे, we could catalyze the business and we will transform the women's at the grassroots level. ठीक. अब यहाँ पर बोला गया है कि आउट ऑफ द 13,000 जो भी अडॉप्टर्स हैं द क्लीन टेक लिवलीहुड एप्लीकेशन, मोर देन 80% आर women. Okay, so what we could do, distributed renewable energy power टेक्नोलॉजी बाय इनहेंसिंग द इनकम अपॉर्चुनिटी. तो हम एक रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोवाइड करवा सकते हैं उनको, सो दैट उनकी जो अपॉर्चुनिटी है वो भी बढ़ जाए. ठीक है, और उनको एम्पावरमेंट भी मिले. ठीक है, और उसके साथ साथ जो भी एनर्जी का जो लॉस हो रहा था, ठीक है, या फिर हम लोग जो वेस्टेज कर रहे थे, ठीक है, जो इमिशंस कर रहे थे, तो वो भी क्या हो सकें, रिड्यूस हो सकें. ठीक है, बाय 2030 अगर बोला गया है इसमें कि जो 30 मिलियन वुमेन्स हैं ओन MSME एम्पावरिंग अराउंड 150 मिलियंस पीपल. ठीक है, अब बात करेंगे चैलेंजेस क्या हैं इस चीज़ में अगर हम इनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं रिन्यूएबल के रिगार्डिंग. सो इट इज़ बेसिकली दिस टेक्नोलॉजी, इट इज़ अ नोवल टेक्नोलॉजी. ठीक है, नोवल मीन्स द न्यू टेक्नोलॉजी. एंड देयर इज ऑल्सो द परचेज रिस्क इज़ वेरी हाई, द कॉस्ट इज़ वेरी हाई. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द सोशो इकोनॉमिक रीजंस हैं. ठीक है ना, लोअर रिस्क फॉर एपिटाइट ऑफ द रूरल विमेंस. ठीक है, फाइनेंशियली मार्केट लीकेज, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये हो सकती हैं. सो what we could do to bridge this gap, we could leverage the experience of the early women's adopter. तो जिन्होंने पहले अडॉप्ट किया उस तरह की टेक्नोलॉजी को, ठीक है, and they have also worked on it, we can just take the help of them and organize the hyper local event or the demons to create the space for the women's to network. तो एक छोटा सा मार्केट बना सकते हैं where they could easily communicate, sell and exchange the energy, and we could support the backward forward marketing linkage. What is this? We could support like backward forward मतलब क्या होता है, producer to consumer, finding the connections between the producer and consumption hub in the rural area. यानी कि backward और forward दोनों. यहाँ पर जैसे ये लिंक है, backward मीन्स जहाँ पर वो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, और आगे क्या है, कंज्यूमर जो वो कंज्यूम करता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी कुड इनेबल द पॉलिसी कवरेज. ठीक है ना,
to promote the livelihood for the women from the state rural livelihood missions, agricultural department and must convene leveraging the research of the government institutions। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी इन डिजिटल इंडिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आया था, क्वेश्चन वाज एग्जामिन द रोल ऑफ द गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन्स इन इंडिया। तो गिग इकोनॉमी का क्या कंट्रीब्यूशन है, दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दैट। ठीक, नेक्स्ट इज द जेंडर इक्वालिटी इन डिजिटल इंडिया। ठीक है, अब देखिए डिजिटल इंडिया में क्या है कि जेंडर इक्वालिटी, एज यू नो दैट सबके पास फ़ोन्स नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्या न्यूज़ है और क्या टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट इज एड्रेसिंग द इंडियाज़ डिजिटल जेंडर डिवाइड। सो व्हाट द टॉपिक इज़ द इंडिया का जो डिजिटल जेंडर डिवाइड है, यानी कि हम बेसिकली क्या है कि इंडिया में किसी के पास टेक्नोलॉजी है, किसी के पास नहीं है। तो हेयर द मीनिंग ऑफ द डिजिटल जेंडर डिवाइस मीन्स the number of the devices or the number of the digital technology availed by the man compared to the women। ठीक है, so this is it। Now Indian economy to achieve the inclusive growth in the longer term, what we need to do, we need to strike a balance between the women and the man। ठीक है, as I told you here just right away, पहले बताया मैंने that we have just celebrated in the 8th of March the International Women's Day, and the theme of the Women's Day, International Women Day of this year 2023 is itself the digital all, that is the innovation and technology for the gender equality, SDG 5, reduce the inequality, SDG 10, data on the digital disparity। ठीक है, अब क्या डेटा है हमारे पास कि कहाँ पर डिस्पैरिटी बन रही है। पहला डेटा है इट इज़ ऑफ द NHFS 5, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है, उसका डेटा है, जिसमें बताया गया है कि 1/3 जो वुमेन्स हैं इंडिया में, ठीक है, उन्होंने एवर यूज्ड इंटरनेट कंपेयर टू दी 57% ऑफ द मेन। ठीक, यानी कि 33% नियर अबाउट वुमेन हैं ऐसी जिन्होंने सिर्फ ज़िंदगी में एक ही बार इंटरनेट यूज़ किया हुआ है, कभी एवर यूज्ड, compared to the 57% of the men, and this percentage increased in the rural to the 49% versus 25%। Now the next report is the UNICEF की report है, ठीक, that 90% of the jobs in the world today are the digital component। UNICEF कह रहा है कि जो भी jobs हैं वर्ल्ड में 90% of them are digitally are has a some sort of digital component। ठीक, and because of that जो digitally able are more than the men and women, so women's हैं वो कम है in compared to the men। The next is the developing country, only 41% of the women have access to the internet compared to the 53% men। तो ये सारी जो रिपोर्ट है ये भी UNFCCC के अंतर्गत CEF के अंतर्गत ही आ रही हैं, यूनिसेफ के अंतर्गत। ठीक है, पहली बात क्या बताया उन्होंने कि जो 90% ऑफ द जॉब है टोटल, वो क्या है, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिजिटल कंपोनेंट है 90% जॉब में। अपार्ट फ्रॉम दैट 41% जो भी वुमेन्स हैं, ठीक है, उनको इंटरनेट का एक्सेस मिला हुआ है कंपेयर टू द 53% मैन। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये जो बोला हुआ है यहाँ पे 41% वुमेन को इंटरनेट का एक्सेस मिला हुआ है कंपेयर टू 53% मैन, दिस इज़ ऑफ ग्लोबल। ठीक है ना, डेवलपिंग कंट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर जो बोला है कि 33% को और 57% को, ये है इंडिया के रिगार्डिंग। दिस इज़ द डेटा ऑफ NHFS 5 एंड दिस डेटा इज़ ऑफ द यूनिसेफ। नो विमेंस आर 20% लेस लाइकली टू ओन द स्मार्टफोन, और ठीक है, कंपेयर टू दी मेन। तो विमेंस को 20% लाइकली टू बी लेस मिलता है। सो व्हाट विमेंस डू, दे बोरो द फोन्स फ्रॉम द मेल फैमिली मेम्बर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट रिपोर्ट OECD की रिपोर्ट क्या कह रही है, द जेंडर गैप इन द इंटरनेट यूज इज वाइडनिंग। वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, मोस्टली जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो चीज़ है, ठीक है, उसमें जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेगमेंट है इट इज़ मेनली मेल डोमिनेटेड। क्या है, मेल डोमिनेटेड है। ठीक है, जिसमें विमेंस जो हैं ओनली 15% कंट्रीब्यूट करती हैं। सो दिस इज़ अ वेरी शॉकिंग न्यूज़ कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इंडस्ट्री है इट इज़ मेनली डोमिनेटेड बाय द मेल। द नेक्स्ट इज़ द फोर्थ वन इज़ द इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022। इसमें बात किया गया है डिजिटल डिवाइड बाय द ऑक्सफेम। तो इंडिया इनइक्वालिटी जो रिपोर्ट आई है, ठीक है,
ऑक्सफैम के द्वारा 2022 की, इसमें बात किया गया कि इंडिया हैज़ वाइडेस्ट इट्स जेंडर गैप बाई 40%, लेस देन 32% ऑफ द वीमेन इन इंडिया ओन मोबाइल या स्मार्टफोन कंपेयर टू द 60% ऑफ द मेन। ठीक, यानी कि इंडिया हैज़ वाइडन जेंडर गैप ऑफ 40%, लेस देन 32% ऑफ द वीमेन इन इंडिया ओन अ मोबाइल फ़ोन। तो इंडिया में सिर्फ कितने ही हैं मीन्स 32% जो वुमेन है वो मोबाइल फ़ोन ऑन करती हैं कंपेयर टू द 60। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो आपको 3 डेटा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो डेटा है, जिसमें बात किया गया है कि 33% यानी 1/3 जो हैं उन्होंने कभी इंटरनेट यूज़ किया है कंपेयर टू द 57। अब 1/3 अगर फिर 33 है तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक, नेक्स्ट बात किया जाए तो यूनिसेफ का ये डेटा पता होना चाहिए क्या कि 90% जो टोटल जॉब्स हैं वो उनमें डिजिटल कंपोनेंट आ गया है। ठीक, फिर थर्ड डेटा जो आपको पता होना चाहिए कि 41% होता जो टोटल वीमेन है, ठीक है, उन्होंने कभी इंटरनेट एक्सेस किया हुआ है कंपेयर टू द 53% ऑफ मैन। और ये जो डेटा है वो डेवलपिंग कंट्री का है, ऑल डेवलपिंग कंट्री का। ठीक, उसके बाद OECD का रिपोर्ट का डेटा पता होना चाहिए, 15% जो है सिर्फ सॉफ्टवेयर में विमेंस हैं। ठीक, और बाकी इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट बाय दी ऑक्सफैम, इसमें बात किया गया है कि जो इंडिया का जो डिजिटल जो वाइडेस्ट जो जेंडर डिवाइड हो गया है बढ़ रहा है। नाउ अब बात करते हैं कि सब ये चीज़ें हो तो नहीं है। नाउ व्हाट इज़ द सोल्यूशन। ठीक है, बात करते हैं कि इशू क्या है पहले और सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। लैक ऑफ एक्सेस, इशू क्या है, लैक ऑफ एक्सेस। एक्सेस क्या है, जैसे मैंने बताया लो लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन कम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ द स्मार्टफोन, कि कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है। ठीक है, तो दिस इज़ द पेनिट्रेशन द स्मार्टफोन। जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट इसको ब्रिज कैसे कर सकते हैं, ब्रिजिंग द गैप एक्सेस कैसे कर सकते हैं, वी कुड इनेबलिंग पीपल और प्रोवाइड देम the smartphones, and we could penetrate the concentration of the smartphone, and we could also increase the internet access with a wider connectivity or penetration। जैसे लाइक इंडिया में प्रोग्राम है PM वानी प्रोग्राम, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, गांव-गांव में रूरल इंडिया में क्या है इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचा रहे हैं। द नेक्स्ट इज़ द डिजिटल इलिटरेसी इनइक्वालिटी इन फंक्शनल लिटरेसी। ओवरऑल 59% ऑफ द women say between the 59 to 49% not completed the 10 or more year of the schooling offer cannot make the optimal use of the smartphone। so this is also the reason कि basically अगर हम उनको स्मार्टफोन प्रोवाइड भी कर दें, even they are not well educated enough to operate the smartphone, they have not completed even the schooling। ठीक है, और even if they can लेट्स से कि उन्होंने ठीक है ऑपरेट कर भी लिया, सो दे विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू यूज़ द ऑप्टिमल टू मेक द ऑप्टिमल यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्मार्टफोन। ओके, फिर बात करते हैं साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दैट विमेंस मे बी मोर वल्नरेबल टू द ऑनलाइन हैरेसमेंट एंड द साइबर बुलिंग एंड द साइबर स्टॉकिंग, एंड दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन। ओके, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग और साइबर फ्रॉड। ठीक, what is the solution, raise the awareness for the responsible technology and the gender responsible digital sensitization। ठीक है, तो हम ये चीज़ें करें और बाकी जो भी पुलिस है और जो जुडिशरी है उसको भी इस बारे में अच्छे से अवेयर किया जाए। नेक्स्ट बात किया जाए एरिया दैट कैन प्ले अ कैटलिटिक रोल इन ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड। ठीक, इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन दिस डायरेक्शन, कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इस डायरेक्शन में, जैसे मैंने बताया क्या, PM ग्रामीण डिजिटल सहकार अभियान। ठीक है, अंडर द विजन ऑफ द डिजिटल इंडिया ये लिया हुआ है। यंग वुमेन जिनको हमने बोला है डिजिटल यंग वुमेन इज़ नोन एज द डिजिटल सखी, ये मध्य प्रदेश का एक इनिशिएटिव है। ठीक है, और उसके बाद जस्ट अ मिनट, ओके। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हम लोग करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात किया जाए तो डिजिटल लिटरेसी
और कैपेसिटी बिल्डिंग को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि लोगों के पास क्या है, अभी डिजिटल लिटरेसी नहीं है कि कैसे उस फ़ोन का जुडिशली यूज़ करना है। दिस इज़ अ बिग रीज़न। एंड एम्प्लॉयबिलिटी, हायर अर्निंग एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट इज़ दी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया यहाँ पर उसको क्या करना है, नेशनल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट इज़ द रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी, दैट इज़ दी प्रो टेक्नोलॉजी, यूज़र प्राइवेसी एंड द डेटा, स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन, ये पता होना चाहिए आपको। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है, स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन चलाया गया था, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। एंड G20 विमेन 20 भी चलाया गया था। विमेन 20 एक प्रोग्राम था जो कि G20 की ऑफिशियल इंगेजमेंट में इसको चलाया गया था टू प्रमोट द जेंडर इक्वलिटी, ठीक, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम थोड़ा सा एग्रीकल्चर की, इसमें बात करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर बात करेंगे द टॉपिक इज़ दी इंडिया टी टेल्स। इंडिया टी टेल्स में यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा सा रिगार्डिंग दी द टी प्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है, तो कैसे क्या कहाँ पर होता है उसके बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट इज़ दी कि द टी जो है बेसिकली, ठीक है, वी गॉट द टी फ्रॉम दी कैमेलिया प्लांट, ये प्लांट है, इससे हमें मिलता है। मोस्टली जो टी इंडिया में प्रोड्यूस होता है इट इज़ कंज्यूम्ड इन इंडिया ऑल्सो, इंडिया में उसका कंजम्पशन भी कर लेते हैं। हम कॉफ़ी को मोस्टली एक्सपोर्ट करते हैं, अदरवाइज़ टी को हम क्या कर लेते हैं, हम खुद होम कंजम्पशन हमारा ज़्यादा है कंपेयर टू दी एक्सपोर्ट। नाउ व्हाट इज़ दी, अगर बात की जाए ग्रोथ थिंग की, तो व्हाट इज़ द एम्बियंट एटमॉस्फेयर, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसको, एंड द टेम्परेचर इज शुड बी बिटवीन द 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, 150 to 300 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल, ओके, एंड द सॉइल शुड बी स्लाइटली एसिडिक एंड porous subsoil in the hilly area, ठीक। एंड अगर बात की जाए टी है क्या, टी के क्या फ़ायदे हैं, इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट एंड वेट लॉस में भी क्या है, ये हेल्प करता है। 21 मई को हम लोग बेसिकली इंटरनेशनल टी डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए कि इंडिया इज़ दी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी ग्लोबली है, ठीक है, एंड स्पेशली उसमें भी बात किया जाए जो ब्लैक टी है उसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। और टी प्रोडक्शन में द स्टेट्स आर लाइक द असम एंड द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपने दार्जिलिंग सुना होगा, सो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द टी, ठीक। और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी क्या टी का प्रोडक्शन होता है। 80% ऑफ द प्रोडक्शन जो है वो हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं डोमेस्टिकली। एज आई टोल्ड यू, हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है इन कंपेयर ऑफ टू दी टी इज़ वेरी लार्ज, ठीक है, इसलिए हम एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। एक्सपोर्ट के बारे में बात की, इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर, ठीक, तो दिस इज यू शुड ऑल्सो नो। एंड द दार्जिलिंग टी और ऑल्सो नोन एज दी चंपागनी टी, ये क्या है, इसको GI टैग मिला हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है, तो दैट्स वाई दी दार्जिलिंग टी इज़ सो मच फेमस। नेक्स्ट बात आपको पता होना चाहिए, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, इस पे UPSC का एक PYQ भी आया था, वी विल डिस्कस। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, सो दिस यू शुड नो दैट कि ये जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है। द हेडक्वार्टर्स इन द कोलकाता 1953 में बना था। फॉरेन ऑफिस की बात किया जाए तो यहाँ पे दुबई और मॉस्को में इसका जो है वो फॉरेन ऑफिस है, ठीक। कौन कौन से हम लोगों ने इनिशिएटिव्स लिए हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ द टी बोर्ड इंडिया। द फर्स्ट इज़ द प्रमोशन ऑफ द पैकेज्ड टी ऑफ इंडिया ओरिजिन, यानी कि पैकेज टी ऑफ इंडिया ओरिजिन की जो पैकेज्ड आइटम है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। फाइनेंशियल रिम्बर्समेंट दिया गया है 25% ऑफ द कॉस्ट गिवन, तो 25% ऑफ द कॉस्ट पर, प्रोडक्शन कॉस्ट पे उसमें क्या मिलेगा, 25% हमें उसमें बेसिकली फाइनेंशियल रिम्बर्समेंट देंगे, ठीक है। और उसके बाद सब्सिडी फॉर द डोमेस्टिकली एक्सपोर्ट इंटरनेशनल फेयर एंड एग्जीबिशन पे मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ टी डेवलपमेंट एंड द प्रमोशन स्कीम, इसमें हम क्या करेंगे, वी विल फोकस ऑन दी enhancing the productivity and the quality of the tree. How we will do that? We will do that with the help of the plantational development of the tree farmers or supporting the producers or the traders and the workers, और उनके लिए we will provide the online licensing facility, ठीक। and there's also an app known as the चाय सहयोग app. नेक्स्ट इज़ दी फॉर्मेशन ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको भी हम लोग फॉर्म करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ दी FPO,
that is the farmer producer organizations and farmer producer companies. तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ के बारे में हमने सुना होगा. तो इट इज़ अ सेल्फ हेल्प ग्रुप. इफ़ देयर इज़ एनी कंसर्न, सो उसकी जो वॉइस को रेस करता है, इट इज़ सेल्फ हेल्प ग्रुप known as the farmer producer organization. And we are also assisting in the educational stipend to the world of the small tea growers. ठीक. नेक्स्ट बात किया जाए कि जैसे मैंने बताया कि कहाँ कहाँ पे इसका प्रोडक्शन होगा. ठीक है. तो यहाँ पर बात किया जाए जैसे हिमाचल में, थोड़ा उत्तराखंड में, मोस्टली वेस्ट बंगाल में, आसाम में, ठीक है, बिहार के इस पर्टिकुलर इस एरिया में, ठीक, उड़ीसा के थोड़ा सा इस एरिया में. नेक्स्ट इस बात की जाए तमिलनाडु में, ठीक, तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, ये एरिया है. 3 मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं. दार्जिलिंग है, ठीक है, आसाम में, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद आसाम का नॉर्थ ईस्टर्न का एरिया, और उसके बाद नीलगिरी का एरिया. ये क्या है, 3 बेसिकली इंपॉर्टेंट रीजन है जहाँ पर टी का प्रोडक्शन होगा. ठीक है. टी प्रोडक्शन के लिए, प्रमोशन के लिए वी हैव प्रोग्राम नोन एज द अरोमा. सो ये क्या है, अरोमा इज़ अ टी प्रमोशन. ठीक है. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अरोमा? ए फॉर असिस्टेंस, री एनर्जाइजिंग, ऑर्गेनिक, मॉडर्नाइजेशन एंड अडेप्टेबिलिटी. तो ये आप इसको वहाँ से पढ़ लीजिएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा. ठीक है. एक देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया हुआ है रिगार्डिंग द टी इंडस्ट्री. is facing a number of the problems resulting in the lower production of the tea and the leaves. Examine 250 words. 250 वर्ड का मतलब 3 पेज में इसको एक्सप्लेन करना है. फिर हम बात करते हैं 2 क्वेश्चंस के बारे में. पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यूपीएससी PYQ है. द टी बोर्ड ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला है टी बोर्ड इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी. अभी हमने देखा यस इट इज़ स्टैट्यूटरी बॉडी. द नेक्स्ट इज इट इज़ रेगुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. गलत. अभी बताया ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है. ठीक. तो ये गलत हो जाएगा. नेक्स्ट इज टी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में है, नहीं कोलकाता में है, भी बताया था. ठीक. नेक्स्ट इज द बोर्ड हैज़ ओवरसीज़ ऑफिस इन द दुबई एंड मॉस्को. ये सही है कि इनकी जो ओवरसीज़ ऑफिस है वो दुबई और मॉस्को. सो डी इज़ दी करेक्ट आंसर. मूविंग फॉरवर्ड, अगर और बात किया जाए यहाँ पर PYQ एक और है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कहाँ कहाँ पर जो है वो टी प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं. ठीक. पहला बात क्या है कि आंध्र प्रदेश, नेक्स्ट इज केरल, हिमाचल एंड त्रिपुरा. ठीक है. तो अभी मैंने बताया था कि जो भी रिपोर्ट आई थी, जैसे मैं बात करूं कि टी बोर्ड ऑफ द इंडिया एनुअल रिपोर्ट आई थी, तो उसमें क्या था, जो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है उसमें असम, ठीक है, और उसके बाद त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल तो ऑब्वियसली है ही है, दार्जिलिंग का एरिया, ठीक, तमिलनाडु, केरला एंड हिमाचल प्रदेश. तो इसमें कौन सा नहीं है, आंध्रा इसमें से नहीं है. तो हमारे जो 3 ऑप्शन हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे. सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. सो ये यहाँ पर ओके अभी एक टॉपिक ये बचा हुआ है आपका. ओके जस्ट अ मिनट. तो अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं आपके, तो अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं. आप कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइएगा कि अगर मैं ऐसे मीन्स के टॉपिक को डिस्कस करूँ, ठीक है, 2 या 3 दिन में एक बार, ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगेगी. और इसमें हम लोग मेंस के टॉपिक कुछ MCQ और इस तरह की चीज़ें डिस्कस करेंगे. और ये जो मेंस के टॉपिक होंगे ये आपके एग्ज़ाम प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी रहेंगे. और प्रीलिम्स के लिए और भी मैं कुछ स्पेशली MCQ और टॉपिक्स लेके आऊँगा. बट ये जो है सेक्शन ये बेसिकली मेंस टॉपिक ओरिएंटेशन है, ये मेंस इनरिचमेंट प्रोग्राम है. तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको. और अगर अच्छा लगा, आप ये चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू रखूँ, लेट मी नो. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू.